Students, in today's video we are going to learn how to draw tangent to a circle at point on the circle. In previous video we studied about our basic constructions and how to construct similar triangle, pair of similar triangle. Okay, now फर्स्टली टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंजेंट. टेंजेंट का मीनिंग क्या है? टेंजेंट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट. स्ट्रेट लाइन that touches the circle at only one point. Okay, there are two types of this construction. First one is using the center of the circle and another one is without using center of the circle. Okay, see, our first question is draw a circle of radius 2.5 centimeter and draw tangent to the circle at any point on it. Okay, then firstly take distance of radius 2.5 centimeter on in your compass with the help of your scale. See, 2.5. Then draw circle Okay, name the circle O. Draw radius suppose this is A is the radius and 2.5 centimeter is the distance of radius. Then draw any straight line from your center O. This is the straight line. You can draw here, anywhere you can draw this. Okay, then mark same distance from your this point of intersecting points of circle and straight line. क्या करना है? फर्स्टली सर्कल ड्रॉ करना है, उसकी रेडियस यहाँ पे आपको लिखनी है ड्रॉ करके. देन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम origin of or center of circle. Then adjust your point of compass on intersecting point like this and make two arcs at both side same distance arc. Okay, this is one segment. अब यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट तैयार हुआ है. आपको इस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको क्या करना है? इस सेगमेंट का ड्रॉ करना है. कैसे करते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ? फर्स्टली टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस of given segment in your compass and make two arcs at downside and upside of line. Again make intersecting arc from another end of segment.
like this. Then join these 2 points. Join these 2 points with the help of your scale. Use finely sharp pencil. You can see यहाँ पे my line touches the circle at only one point, and this point will P, and this line is suppose OM. OM is the line, and this is our tangent at point P. See marking system of this construction. Half mark for circle, half mark for radius and measurements, means this, half mark for straight line, then half mark for segment, ये जो आप सेगमेंट करते हो उसे, हाफ मार्क फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, and half mark for your signs and names, means finishing. See, this is perpendicular and this is equality sign. Okay, half, a total 3 marks for this construction. 3 marks for this construction. Understood? क्या किया है हमने? पहले सर्कल ड्रॉ किया है, उसके बाद उसकी रेडियस एंड मेजरमेंट लिखे, देन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम ओरिजिन, देन सेगमेंट डिसाइड किया, यहाँ पे आर्क रखे, देन हाफ मार्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, एंड हाफ मार्क इज फॉर साइंस एंड नेम्स, मीन्स ये जो साइंस है परपेंडिकुलर का, इक्वेलिटी का, ये जो ए ओ पी एम ये जो नेम्स है इन सब के लिए हाफ मार्क है. अगर आपका ये पॉइंट क्या होता है, इधर थोड़ा दूर आएगा, अंदर ही जाएगा, मतलब प्रॉपरली आपका ये बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन आपने अदर सब किया है, तो सिर्फ ये परपेंडिकुलर का हाफ मार्क कट होता है और आपको इस डायग्राम के लिए 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. पहले सर्कल हाफ मार्क्स जो है वो तो आपको मिल ही जाएगा, मीन्स सर्कल का हाफ मार्क, रेडियस का हाफ मार्क, स्ट्रेट लाइन का हाफ मार्क, सेगमेंट का हाफ मार्क. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी वो इधर आता है, कभी अंदर जाता है, अगर आपके कंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं है तो. अदरवाइज इट विल एग्जैक्टली प्रॉपर टेंजेंट. अंडरस्टूड? देन टेक वन मोर second. Okay, draw a circle of 3.8 centimeter and draw tangent to the circle at any point on it by using the center of the circle. Okay, then step wise, first step is draw circle.
सर्कल ड्रॉ करना है 3.8. ड्रॉ सर्कल 3.8 centimeter. Okay, then name for this center O. Draw radius A. Measure of this radius is 3.8 centimeter. Then draw straight line. Then give name for straight line P. Then next step is segment. Make segment okay. Then draw perpendicular bisector. With more than half distance. Join these segments. Join these points of intersecting arcs. It will your tangent point M. Then last one, signs and names. Sign of perpendicular and sign of equality. Understood? Okay. Then the next point is without using the center of the circle. Draw tangent for circle. Okay. For this, suppose take question. Draw circle of radius 3 centimeter and draw tangent at any point on the circle without using center. Okay, see, you have to use only center for drawing circle. For this, 3 centimeter is the measure of our circle radius. See, like this. यहाँ पे जैसे हम पहले इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन लिया हमने उसमें हम सेंटर का यूज करते थे, मीन्स सेंटर से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे. तो अब यहाँ पे हमें सेंटर का कुछ भी यूज नहीं करना है. ये आपका सेंटर है वो. ओके, देन ड्रॉ एनी कॉर्ड. आप कहाँ पे भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो. कॉर्ड मीन्स व्हाट? सेगमेंट ज्वाइनिंग टू एंड्स ऑफ सर्कल, मीन्स दोनों तरफ जो सर्कल को ज्वाइन करता है वो. सपोज ए बी इज माय कॉर्ड. देन you have to make triangle on your circle, but your triangle should occupy
योर सेंटर। मीन्स आपको ऐसा ट्रायंगल बनाना है कि जिसमें ये सर्कल उसके बीच में आएगा। मीन्स उस सेंटर जो है वो इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल बोलते हैं उसे, वो इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल आपको यहाँ पे तैयार करना है। ओके, देखो यहाँ पे अब ये जो आपने न्यू पॉइंट लिया है, ये जो एंगल है वही एंगल आपको यहाँ पे बनाना है। हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल की कंस्ट्रक्शन बेसिक कंस्ट्रक्शंस में देखिए हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस लेते हैं, जो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है उसके वर्टेक्स पे हम ये रखते हैं, ऐसे आर्क बनाते हैं। सेम आर्क हमें यहाँ पे भी बनाना है। सी देन मेक अनदर आर्क फॉर दिस, like this. Okay, now this is your congruent angle, यहाँ तक होगा ऐसे। ओके, यही लाइन आपको क्या करनी है, पूरी ड्रॉ करनी है, और ये होती है आपकी टेंजेंट। सी ओनली वन पॉइंट में मेरा ये टच हो रहा है, आप देख सकते हो। ओके, अगेन marking scheme for this is half mark for circle, then half mark for chord, half mark for your making triangle, half mark for arcs, half mark for this line, tangent, and another half mark for your names. ओके, यहाँ पे आप रेडियस भी ड्रॉ कर सकते हो, आपकी डायग्राम परफेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे। दिस इज़ योर रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड नेम्स एंड मेजर्स आर्क्स सबके लिए यहाँ पे भी आपको नेम देना है, पॉइंट डी। ओके, टोटल 1 2 3 4 5 6 मीन्स टोटल 3 marks for this construction. 3 marks for this construction. Understood? Okay. See how to draw. मैं ऐसे ही एक आपको फिर से करके बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब मैंने मेजर्स वगैरह कुछ नहीं लिए हैं, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आप सबसे पहले क्या करोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे, देन उसके सेंटर को नेम करोगे P, देन ड्रॉ वन chord, suppose XY, then make triangle। ऐसा ट्रायंगल बनाना है कि आपको सेंटर बीच में आना चाहिए। ओके, लाइक दिस, सपोज दिस इज माय पॉइंट Z, देन यहाँ पे जो न्यू एंगल तैयार हुआ है इस साइड पे, वो आपको क्या करना है, उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं कि जो
पहला आर्क तो ठीक से करते हैं, सेकंड आर्क में कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से लेना है। इस साइड पे भी बराबर करते हैं सेकंड आर्क, इसमें आपको डिस्टेंस कम ज़्यादा करना पड़ता है, ये परफेक्टली ऐसे ड्रॉ होना चाहिए। तो सेकंड आर्क का पॉइंट यहाँ से लेना है कि यहाँ से, यही बच्चों को समझ में नहीं आता। हम एंगल इस लाइंस के लिए बना रहे हैं एक्स वाई के लिए, तो हमें इंटरसेक्टिंग आर्क के लिए भी यहाँ पे ही एक्स वाई लाइन पे ही, मतलब हमारी जो फर्स्ट कॉर्ड थी वो फर्स्ट कॉर्ड को ही हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग सेंटर बना के इंटरसेक्टिंग आर्क ज्वाइन करना है। और ये होगी आपकी लाइन passing through y point and this arc. Make name here also, suppose this is R point. Understood? Okay, then only one